About piping air blowing. Air blowing basically need to be done after the hydro test. After the hydro test need to be debris clean from the inside the line. So now I am going to discuss about preparation of air blowing, and second topic is systematic diagram of the air blowing. First of all, I show you the systematic diagram of the air blowing, then I going for the discuss about preparation or how to prepare for air blowing in the piping system. Now I am going to discuss about air blowing systematic drawing. That is the systematic drawing of the air blowing. This is the pipe. We have the piping system. Piping system from here to here. This is our piping system. This one. Now going for the air blowing. That time I arrange one manifold. This is the manifold. This one used for hydro test and pneumatic test, and then after that if you want to do air blowing, then this one used for the air blowing for the purpose of safety regarding. In this manifold have a different outlet. First of all, this one is inlet with NRV, non-return valve. Inlet with NRV, non-return valve. After that one, this one is PSV, pressure safety valve. When the pressure is going rise, this PSV have a set pressure. If I set this PSV to 5 bar, means after the 5 bar this PSV is automatic is released because of pressure safety valve. This one is automatically released from after the 5 bar. And the second outlet, have a ball valve, and this one is connected to our piping system. Okay, then third outlet with the help of pressure gauge. That pressure gauge indicate the whole system how many pressure. After that, fourth outlet, a spare other connection. If you have free, this one is free connection, this one is free connection. Whenever anyone is damaged, this time is used, and other anything is connection from here. One is the drain point, have a drain point during the hydro test. This one need to be drained, that one drain point. This is our compressor for pressurizing the air, air compressor. Okay, now I am talking about this one is manifold connection. Now I am going to the inside the line. Inside the line, this one is pressure hose pipe. This one is connected with ball valve. All are half inch. All the size, all size is half inches. Now this one is blind. According to the line size, blind installed. Here is also one blind. This one also blind with coupling. That blind is have one connection, threaded connection. So is the arrange with ball valve or the pressure gauge, anything. This is the here is pressure gauge for the inline pressure. Inline, how much pressure is, so the inline pressure. Okay, now when the compressor is start, this manifold is showing the pressure. After that, this hose pipe connection going the inside the line, and now this one is here. From here is the temporary quick release because of this air blowing. When the pressure is raised to 2 to 5 bar or 3 to 3.5 bar or 4 bar, according to the debris of inside, how much available inside the dirty item. So 3.5 bar or 4 bar, I open this valve. That time is coming out of the. That's the basic systematic diagram. This systematic diagram, according to the piping system, according to the pipe size, this blind and this fittings arrangement can be changed because of connection of this piping system for the air blowing purpose. This is the systematic diagram. Inlet from here in the piping system, inlet from here, outlet from here. This one air blowing method for the cleaning. This air compressor is oil free air compressor. Oil free air compressor, 5 to 7 bar capacity. Quick depression method, quick release method or air blowing will be effective method for the cleaning of the piping after the hydro test. ये जो क्विक ओपनिंग है ना, क्विक ओपनिंग करेंगे तो
effective method है PNID. First of all, I will check the PNID. That PNID give me the root air blowing. The following items shall be indicate minimum. कुछ आइटम हमको मिनिमम इंडिकेट करना है. एयर सप्लाई एंड एयर ब्लो पॉइंट. दिस इज द एयर सप्लाई पॉइंट, and this one is air blow point. Air supply and air blow point. Major valve position, that is the inside the line. When I will go for checking of the major valve positions, temporary hose, valve, blind, spool and lead pipe. Hose pipe quality. This hose pipe have a hose pipe determined and shown in the marking PNID. एयर ब्लोइंग का जो रूट है, जो पाइप का हमारा रूट है ओवरऑल, वो एज पर टेस्ट पैक वाइज हमारा PNID में मार्किंग रहता है. तो एज पर PNID मार्किंग लाइन को कंप्लीट ओवरऑल एक बार चेक करेंगे कि एयर ब्लोइंग करने के लिए हमें कहाँ कहाँ ब्लाइंड करना है और कहाँ से इनलेट होगा, कहाँ प्रेशराइज गेज इंस्टॉल करेंगे और कहाँ से आउटलेट देंगे. एयर ब्लो पॉइंट है, मतलब सप्लाई किधर से होगा, ब्लो पॉइंट कहाँ से होगा. मेजर वॉल पोजीशन, वॉल का पोजीशन चेक करना है, अदरवाइज कोई इंस्ट्रूमेंट आइटम है तो उसको ड्रॉप करना है. टेम्पोरी हॉज रिक्वायरमेंट, वॉल्व रिक्वायरमेंट, टेम्पोरी ब्लाइंड रिक्वायरमेंट, स्पूल एंड लीड पाइप फॉर द कनेक्शन ऑफ हॉज पाइप एंड ब्लोइंग पॉइंट, रिमूविंग वॉल्व, क्विक डिप्रेशन मेथड के जरिए वॉल्व ओपन करते हैं. दैट वन नीड टू बी अरेंज. हॉज पाइप, जो प्रेशराइजिंग हॉज पाइप है, उसकी क्वालिटी के लिए उसका एक कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट होता है, डेटा शीट होता है हॉज पाइप का, वो डेटा शीट भी हम लोग चेक करेंगे. नाउ चेक शीट एंड द एयर ब्लोइंग रिकॉर्ड. एक एयर ब्लोइंग का शीट आता है जहाँ से ब्लो पॉइंट करते हैं ना, वहाँ पे एक शीट इंस्टॉल करते हैं. उसमें मतलब दिखता है कि हमारे लाइन के अंदर क्या क्या आइटम था, उसमें जाकर वो हिट करता है, कुछ ऐसा डेंट तो नहीं हुआ उस शीट में, तो चेक शीट भी अरेंज करेंगे. प्रेशर गेज विल बी प्रोवाइडेड एट द कंप्रेसर डिस्चार्ज पॉइंट. कंप्रेसर से जहाँ से हवा डिस्चार्ज होगा कंप्रेसर से, वहाँ पे एक प्रोवाइड करेंगे कि आपको कंप्रेसर ऑपरेटर जो होगा वो उसको प्रेशर को देख सकता है. एंड इनलेट ऑफ द पाइप, जहाँ पाइप में इनलेट करते हैं वहाँ पे भी एक प्रेशर हॉर्स पाइप मतलब गेज हम लोग इंस्टॉल करेंगे कि ड्यूरिंग एयर ब्लोइंग लाइन के अंदर कितना गेज प्रेशर हुआ वो अपने को चेक करने के लिए. Before start the air blowing work, equipment of the piping and instrument of the permanent installation shall be protected. मतलब वो सारे permanent item को लाइक इंस्ट्रूमेंट आइटम हो गया या फ्लो एलिमेंट हो गया या RO हो गया या PCV या FCV या PRV या TRV, जो भी है इंस्ट्रूमेंट आइटम होगा उसको आपको रिमूव करना है. रिमूव ओरिफिस इनलाइन इंस्ट्रूमेंट अगर कोई है तो उसको रिमूव करना है. और लोकल मतलब उस एरिया में जो भी आदमी काम कर रहा है उसको नोटिफाई बिफोर द ब्लोइंग. आप उसको नोटिफाई करेंगे. लोकल एरिया शैल बी बैरिकेटेड. आपका जो एरिया है उसको बैरिकेटेड करना है ताकि उसमें जो एयर ब्लोइंग के टाइम पे आप एयर ब्लो करेंगे तो किसी अदर पार्टीज़ को, किसी अदर वर्कर्स को आपको कोई डिस्टर्बेंस या कोई हार्म या इंजरी ना हो. इंश्योर ऑल द सेफ्टी मेजर्स. सारे सेफ्टी मेजर्स का आपको ध्यान रखना है. कैसे आपको बैरिकेड्स के अंदर या हॉर्न बजाना है आपको एयर ब्लोइंग करने से पहले. जो भी पर्सन उसमें काम कर रहा है, ऑल द वर्कर्स मस्ट हैव वेयर ऑफ द प्रोटेक्शन, एयर प्रोटेक्शन. ओके, बेस्ड ऑन द स्टोर एनर्जी, आपने लाइन के साइज़ के हिसाब से बेस्ड ऑन उसमें कितना स्टोर एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग आपको बैरिकेड करना है. एयर ब्लोइंग के लिए आपको RFI रेस करना होगा बिफोर 24 आवर. अगर आप किसी लाइन में एयर ब्लोइंग करना चाहते हो तो RFI रेस करना होगा. इंश्योर डैट नेसेसरी अप्रोप्रिएट बाउंड्री मार्कअप. उस RFI में बाउंड्री मार्कअप होगा कि इस एरिया में हम लोग एयर ब्लोइंग करना है. टू अरेंज द प्रॉपर बैरिकेड अराउंड द वर्क एरिया, में प्रॉपर बैरिकेड करना है. ओके, एयर ब्लोइंग चेक शैल बी फिल्ड विद विटनेस वेरीफाइड. जब आपका एयर ब्लोइंग चेकिंग हो जाता है तो एयर ब्लोइंग का एक विटनेस पेपर होता है, उस विटनेस पेपर पे आपको साइन लेना है. तो बेसिकली एयर ब्लोइंग आउटलेट शैल बी सेपरेट प्रोटेक्शन बॉक्स. जहाँ पे एयर ब्लोइंग का आउटलेट होगा वहाँ पे एक सेपरेट प्रोटेक्शन इसका फोल्डिंग का बॉक्स बना देंगे कि लाइन के अंदर से कुछ भी आइटम आए तो वो उसी में डायरेक्ट हिट करे और उधर ही मतलब वहीं सेफ प्लेस पे. अदरवाइज अगर आप हो सकता है लाइन के अंदर कुछ भी स्टोन हो या कुछ भी हो तो एयर ब्लो की वजह से बहुत दूर तक आगे किसी को भी हार्म कर सकता है. हॉर्न शुड बी रेज्ड बिफोर स्टार्ट द एयर ब्लोइंग ऑफ द प्रेशर रिलीज. मतलब एंड बिफोर द प्रेशर रिलीज. आप एयर ब्लोइंग के स्टार्ट करने से पहले भी हॉर्न रेज करेंगे और जब प्रेशर रिलीज करेंगे उस टाइम भी. तो बेसिकली एयर ब्लोइंग का मेजर फैक्टर ये है कि आप लाइन को इंटरनली क्लीन करने जा रहे हैं. तो इंटरनली क्लीन करने के लिए आप लाइन में प्रेशर डालते हैं 3 to 5 बार
एंड देन आफ्टर दैट या तो वो रप्चर डिस्क ब्लास्ट होता है या फिर आप उसका वॉल्व ओपन करते हैं। तो जब आप सडनली वॉल्व ओपन करते हैं तो स्टोर एनर्जी जो है वो बाहर आउटसाइड में ब्लो होता है। उसमें क्या है कि लाइन के अंदर जो डस्ट पार्टिकल है या कुछ भी आइटम्स है, डिब्रिश है, वो आउटसाइड लाइन के आउटसाइड हो तो इंटरनली वो क्लीन हो जाता है। तो सिस्टमेटिक डायग्राम में आपने देखा कि कैसे हम लोग पाइप का हॉस पाइप और कनेक्शन करते हैं और कैसे वहाँ पे एक गेज का अरेंजमेंट करते हैं। तो बेसिकली एयर ब्लोइंग का मतलब ये है कि ये दो गेज आप लगाएंगे, एक अपना मैनीफोल्ड में और एक लाइन में। जब प्रेशर 3 to 5 बार के बिटवीन में आ जाएगा तो आप वो वॉल्व जो ओपन करने वाला टम्प होगी, वॉल्व को आप ओपन करेंगे तो वहाँ से एयर ब्लो होगा। ये कंटिन्यूस 5 times 10 टाइम्स करते हैं तो लाइन इंटरनली क्लीन हो जाती है।